In this video, we will have some more examples based on triangular inequality, its perimeter, and integer sides of a triangle. So let us first start with triangular inequality. So triangular inequality is a rule among the three sides so that a triangle can be formed. और simply rule बोलते हैं कि अगर दो sides का sum third से बड़ा है, then only a triangle can be formed. और difference of two sides is less than third, then a triangle can be formed. तो मान लीजिए ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं ए बी सी, तो हम इसको लिखेंगे एल्जेब्रिकली दैट सम ऑफ टू साइड्स दैट इज ए प्लस बी मस्ट बी मोर देन सी. Similarly, a plus c is more than the third side b and b plus c must be more than the third side is a. और इसके एक दूसरा फॉर्म है, आप अगर b को इधर शिफ्ट कर दें तो वी विल गेट c माइनस बी लेस देन a. So this also means that difference of two sides c minus b is less than a. Mode का meaning है that bigger minus smaller side. Mode means always positive. We can also write that mode of b minus a is less than c. And the third condition is mode of a minus c is less than b. सो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं हम इन तीन फॉर्मूले से कवर कर सकते हैं, जो ब्रीफली बोलते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज बिगर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड. तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. एक आईएफटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. दिस सेज इन अ ट्रायंगल एबीसी द साइड बीसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एबी, एसी इज इक्वल टू 1600 and AB is a perfect power of 3. Find the perimeter of this triangle. So all the three sides are integers because AC is 1600, AB is a perfect power of 3. Perfect power of 3 means it is either 3 or 9 or 27 or 81 or 243 etc. ये सिर्फ 3 की पावर है, इसमें और कोई नंबर नहीं है. और ऑल्सो BC is equal to 3 times of AB. ठीक है, इससे अलग हमारे पास क्या रूल बचे हैं जो हमने अभी भी पढ़ा है कि ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल की, उनमें एक रूल आता है सम ऑफ टू साइड्स इज बिगर देन द थर्ड साइड. तो एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल को. ओके, सपोज दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सी. क्वेश्चन सेज BC is equal to 3 times of AB. Suppose AB is x, then BC is equal to 3x. And AC is given as 1600. This value is 1600. तो इतना लिखने पे बहुत क्लियर हो जाता है क्वेश्चन कि हमारे पास कोई रूल नहीं है सिवाय इसके दैट सम ऑफ टू साइड्स इज बिगर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड. सो दिस साइड इज x, दिस साइड इज 3x, थर्ड साइड इज known, it is 1600. So sum of two sides, that means 3x plus x is more than 1600. That means x is more than 400. 4 से डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू 400 से बड़ी आनी चाहिए. ठीक है. द सेकेंड रूल सेज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड. सो व्हाट इज देयर डिफरेंस? Difference is always bigger minus smaller. So 3x minus x is less than 1600. So this means x is less than 1600 by 2. It is 800. So value of x is lying between 400 to 800. There are many possible values, but question again says that AB is a perfect power of 3. Perfect power of 3 means it contains only 3 and powers of 3. That can be 3 or 9 or 27 or 81 etc. तो आप बताइए 400 और 800 के बीच में वो क्या नंबर होगा जो सिर्फ 3 की पावर होगा. सो x is पावर ऑफ 3. इट मस्ट बी पावर ऑफ 3. काउंट भी कर सकते हैं. 243 के बाद आता है 729, 3 to the power 6. तो x can be only 729. आप सक्सेसिव पावर्स ऑफ 3 की देखेंगे तो आफ्टर 243 यू गेट 729, आफ्टर 729 यू गेट 2187. तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया. 243 दोनों रेंज से बाहर हो गया.
तो x has only and only one value, that is 729. So now triangle is determined completely. We can easily get perimeter of this triangle. So one side is 1600, second side is x, that is 729. The third side is 3x, 3 times of 729, 2187. ठीक है, आप तीनों को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कैन बी ऑब्टेन. तो फर्स्ट साइड इज 729, वन साइड इज 2187 and third is 1600. The addition will be, this is 4516. ये तो आप सोल्व कर ही देंगे. So this is the perimeter of this triangle. Next question देखिए. Find the number of triangles such that all the three sides are integers and perimeter of this triangle is 20. बहुत पुराना क्वेश्चन है कैट का और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है. तो पहले हम इसको देखेंगे जनरल मेथड और फिर हम देखेंगे इसमें शॉर्ट मेथड. एक बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है इसका. सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद पेरीमीटर 20 एंड ऑल द थ्री साइड्स आर इंटीजर्स. तो देखिए इसमें क्या क्या हम पार्ट्स लेंगे. सपोज फर्स्ट साइड इज ए, सेकेंड साइड इज बी and the third side is C. Their sum is given as 20. पर आपको ध्यान रखना होगा ABC are not independent numbers. We cannot take any number ABC so that their sum is coming out to be 20. तो triangle B बनना चाहिए. For example, if I take A is equal to 18, B is equal to 1, मैं लिख भी देता हूँ फिर हम हटा देंगे इसको. 18 and 1 and 1. तो बिल्कुल ठीक है, इनका सम 20 आ रहा है बट इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा. ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए और जो उसमें नहीं हो रहा है. b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू b प्लस सी इज ओनली 2, थर्ड साइड इज 18. ABC को हम ऐसे चूज करेंगे सो दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज बिगर देन द थर्ड साइड. तो इसमें हम एक रूल बना सकते हैं दैट ईच साइड इज लेस देन 10, जो कि पेरीमीटर के हाफ के बराबर है 10. अब देखिए अगर आप किसी भी एक सिंगल साइड को 10 मान लेंगे तो बचे हुए दो का सम भी 10 ही आ जाएगा एंड सम ऑफ द रिमेनिंग 2 मस्ट बी मोर देन द फर्स्ट साइड. तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी. आप किसी भी एक साइड को पेरीमीटर के हाफ के बराबर नहीं ले पाएंगे. आप किसी भी एक साइड को पेरीमीटर के हाफ से बड़ा भी नहीं ले पाएंगे. सपोज इफ यू टेक a इज इक्वल टू 12, देन b प्लस सी विल बी 8. b प्लस सी अगर 8 होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा. तो हमें हर साइड को 10 से कम रखना है, देन ओनली ट्रायंगल कैन बी पॉसिबल. एक अच्छा रूल भी है, एवरी साइड इज लेस देन हाफ ऑफ द पेरीमीटर. अब हम इसको टेबुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे वन बाय वन. ओके, दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ a एंड दीज आर b प्लस c. और हम देखेंगे कितने केसेस बनेंगे. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a कैन बी एट द मोस्ट 9. a की वैल्यू 10 से कम होगी तो a इज टेकन एज 9. देन b प्लस c वुड बी 11 बिकॉज a अलोन इज 9. तो 11 को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में सो दैट नन ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू और मोर देन 10. तो फिर b प्लस c को हम लिखेंगे 9 प्लस 2. इट कैन बी 8 प्लस 3 और इट कैन बी 7 प्लस 4 और इट कैन बी 6 प्लस 5. a की वैल्यू हमने 9 को फिक्स कर दी है. So a is fixed as 9, b plus c must be equal to 11. तो b plus c को हमने स्प्लिट कर दिया 9 plus 2, 8 plus 3, 7 plus 4, 6 plus 5. ठीक है, अब आप देखिए क्या हमें लिखना चाहिए वापस से 5 plus 6. तो नहीं, देखिए 9, 6, 5 and 9, 5, 6 आर द सेम ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को आप रोटेट नहीं कर सकते, उससे सेम ट्रायंगल आता है. तो 6 plus 5 तक लिख के हम छोड़ देंगे. अब हम सेकंड ग्रुप लेंगे इसके बाद. a can be 8. When a is equal to 8, b plus c will be 12. और 12 को आप स्प्लिट कीजिए. 12 कैन बी 8 प्लस 4, 12 कैन बी 7 प्लस 5, इट कैन बी 6 प्लस 6. दिस पार्ट इज फिक्स एज 8. अब कई लोगों के डाउट आता है कि हमने 9 प्लस 3 यहाँ पर वापस नहीं लिया है बिकॉज 9 और 3 का कॉम्बिनेशन ऊपर आ चुका है. तो एवरी ट्रायंगल दैट इज हैविंग वन साइड इज 9 हैज बीन ऑलरेडी काउंटेड. Now we are counting the triangles which are having side less than 9. So 8, 8, 4, 8, 7, 5, 8, 6, 6.
The third case is a is equal to 7. So sum of the remaining two sides is 13. 13 can be written as 7 plus 6. हम 8 वाले भी सारे केस गिन चुके हैं और 9 वाले भी, और 6 प्लस 7 वापस से आप नहीं लिखेंगे, तो 7 प्लस 6 ही आंसर आएगा। इनको हम मैनुअली गिन सकते हैं। देयर आर 4 केसेस, देन 3 केसेस, देन 1 केस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4 प्लस 3 प्लस 1। दिस आंसर इज 8। ठीक है, इसका हमारे पास शॉर्टकट है, इसमें इतना टाइम भी आपको नहीं लगेगा, बट फिर भी हमें जनरली कंडीशंस पता होने चाहिए। इससे हमने क्या सीखा? नंबर 1, दैट एवरी साइड is less than half of the perimeter. Number 1. Number 2, the three sides of a triangle are actually unordered triplets. Unordered का मतलब होता है जिनमें ordering important नहीं होती. For example, 9 plus 9 plus 2 is the same triangle as 2 plus 9 plus 9. तो आपको उसको परम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 8। तो देखिए काफी पुराना कैट का क्वेश्चन है और इसमें काफी टाइम लगता है अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता, और अच्छे क्वेश्चन में से एक गलती भी हो सकती है। अब इसका एक शॉर्ट मेथड देखिए आप, ये तो बहुत ही फास्ट एक मेथड है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स हैविंग पेरीमीटर एज p, so all the sides are integers and perimeter is p, so number of triangles can be calculated with a direct formula. Formula says number of triangles is p square by 48 when p is even, or number of triangles is p plus 3 square by 48 when p is odd. And this bracket, this capital bracket indicates the nearest integer function, जिसका मीनिंग है अगर आप इसको सोल्व करते हैं और वैल्यू आ जाती है 8.11, तो आप उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। 8.11 का नियरेस्ट इंटीजर होगा 8। अगर ये वैल्यू आती है 8.9, तो आप इसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 9। तो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने सोल्व किया, अगर हम वापस पर जाएं, फॉर्मूला विल बी p स्क्वायर अपॉन 48, because p is even, p is 20. What is p? So this answer is 20 into 20 divided by 48 कैपिटल ब्रैकेट। अच्छा, कैलकुलेशन भी नहीं होती, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 से आप कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 5, और इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 5, दिस बिकम्स 3। पहले 12 हो जाएगा फिर 3, तो 25/3, दिस आंसर इज 8.33। 8.33 is nearest to 8. So what is the closest integer to this 8.33? This answer is 8. तो ये 8 जो हमने आंसर निकाला था, ये एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है। Either use the formula p square by 48, or if the number is odd, use the formula p plus 3 square by 48. तो ये उसके लिए तो बहुत ही फास्ट मेथड होगा when we calculate number of triangles with integer sides and for the given perimeter. इस पर हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे। ये थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन, देखिए। Find the number of triangles such that perimeter of the triangle is 40 and all sides are positive even integers. तो हमने इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दी है, even integers। ठीक है, तो even integers होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, और ये तो ऑब्वियस है कि ट्रायंगल है तो इंटीजर्स पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव साइड तो होंगे नहीं। सो सपोज द फर्स्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 2a, the second side of the triangle is 2b, and the third side is 2c, and their sum is equal to 40, because 2a plus 2b plus 2c is equal to 40। 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 2a हमने एज्यूम किया बिकॉज ऑल द साइड्स आर इवन, सो 2a is even, 2b is even, 2c is even। This implies a plus b plus c, this answer is 20। Here ABC can be any three numbers, इनके ऊपर कोई restriction नहीं है, but 2A, 2B, 2C will be even numbers। और अगर 2A, 2B, 2C से एक ट्रायंगल बनता है तो फिर ABC से भी सेम ट्रायंगल बनेगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा। सो A plus B plus C is equal to 20, पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। That perimeter of the triangle is 20, all the three sides are integers, how many triangles can be formed? तो फिर यूज कर दीजिए फॉर्मूला आप। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज p स्क्वायर अपॉन 48, where p is even, p तो even है, वही लास्ट वाली कैलकुलेशन हम यूज कर लेंगे। दिस आंसर इज 20
into 20 divided by 48 capital bracket and this value comes out to be 8.33. अभी भी तो सोल्व किया हमने क्वेश्चन ये, तो 8.33 so number of triangles will be 8. तो हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और अगर प्लेन क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल विद इंटीजर साइड्स विद द गिवन पेरीमीटर्स, तो फिर आप यूज कर लीजिए p² by 48 और p plus 3² upon 48.